You have your exam tomorrow and you are sitting at 8 o'clock scrolling shorts, reels, maybe memes about procrastination. Yes, sounds familiar? You are not alone. Every student is facing the same struggle every day. Hi, I'm CA Priyanka Chen and welcome back to my channel The Life Baker. Today in this video we'll be talking about a problem which every one of us face, which is procrastination. We'll dive into why it happens, to understand why procrastination actually happens, its impact on your life, and most importantly, how to overcome it. What are the techniques which we can use to overcome procrastination? Because it's time to break the cycle and bake a very productive life. So let's get started. And yes, don't forget to grab your notebook so that you can write all the points which you might feel helpful. And so now let us understand what is procrastination. Because it is not simply laziness. Let us simply put it like, delaying task even after knowing that there will be a lot of negative consequences. हमें पता है कि ये important है, but still हम उसे delay करते रहते हैं. हम जानते हुए भी कि अगर हम डिले करेंगे तो इसका consequences won't be good. So still we keep on delaying. Okay. There are many reasons why do we do it. But let us understand all the pros and cons and let us find out the technique to solve it. Mostly it's because our brain is working against us. Okay, one part of our brain wants instant gratification. कि हम जो भी कर रहे हैं हमें immediately उसका एक happiness, एक joy मिले. Like कुछ टास्क करना है हमें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पर अगर इफ़ आई वॉच अ मूवी तो इंस्टेंट मज़ा आएगा. इट विल ब्रिंग जॉय टू टू आवर लाइव्स, क्योंकि मूवी देख के मज़ा आता है, राइट? तो एक पार्ट ऑफ द ब्रेन वांट्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन वांट्स टू बी फोकस्ड, बट उसमें क्या होगा, रिजल्ट हमें बाद में मिलेगा. ओके, सो व्हेन द फर्स्ट पार्ट, द वन पार्ट which needs instant gratification overpowers the second part of our brain जो focused रहना चाहता है, proper plan करके study करना चाहता है. जब भी ये वाला part इस part को overpower करेगा, procrastination will win. We will start delaying the stuffs, the task. Okay, so basically it's the brain which is working against us. So let's understand कितने types के procrastinators होते हैं. Okay, different types of procrastinators. So first we can say कि people who are perfectionist, they want everything to be perfect, and वो perfection के चक्कर में we keep on delaying the stuff. बाद में करेंगे, अच्छे से करेंगे, जब ज़्यादा टाइम रहेगा तब करेंगे. Okay, so people who wants to be perfectionist, so they are one type of procrastinators. So the second one is people who are overwhelmed procrastinators. मतलब they feel कि टास्क बहुत बड़ा है, इट्स वेरी ह्यूज, लेट अस डू इट लेटर, बाद में करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है, इट्स अ बिग टास्क, अभी बैठने का मन नहीं है, कम टाइम है, whatsoever reasons and excuses we give to ourselves. But the thing is कि because the task is big, we keep on delaying it. And the third type of procrastinators are thrill. They want thrill seekers, they want everything to be done at the last moment. उन्हें मज़ा आता है last moment में करके, उन्हें एक अलग सा dopamine release होता है, they get kick when they are being able to do it in the last moment. Basically they wait till the last minute for the adrenaline rush. But the thing is that we need to understand कि procrastinators का effects क्या क्या है, how will it affect us, our lives. तो सबसे पहले तो आपका एकेडमिक स्ट्रेस, बीइंग अ स्टूडेंट, इफ़ यू कीप ऑन डिलेइंग योर स्टफ्स, योर स्टडीज़, तो आपको एकेडमिकली तो स्ट्रेस आएगा बिकॉज लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा कोर्स बच जाएगा, राइट? तो एकेडमिक स्ट्रेस you will again face mental stress also, mental anxiety because of the panic you get because आपका कोर्स ख़त्म नहीं हुआ. तो वो जो एक टेंशन आता है ना, तो उससे आप मेंटली इफेक्ट होते हो और आप कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, आप फोकस नहीं कर पाते हो. ठीक है, तो आपका एकेडमिक भी इफेक्ट होगा, आप मेंटली भी इफेक्ट होगे. देन इट विल अगेन इफेक्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल ऑल्सो, बिकॉज आप जितना डिले करते रहोगे ना, यू विल डाउट योर सेल्फ कि आपसे शायद नहीं हो रहा इसलिए आप डिले कर रहे हो, या यू आर नॉट गुड इनफ टू डू इट. तो कॉन्फिडेंस भी आपका हिला देता है इफ़ यू कीप ऑन डिलेइंग
से मतलब द सिमिलर टास्क बार बार डिले करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी इफेक्ट होगा. इट विल ऑल्सो इफेक्ट योर फोकस, योर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आप जब बैठोगे तो आपको दिखेगा इतना कुछ बचा है करने के लिए, तो आप वापस से उस टेंशन में फोकस ही नहीं कर पाओगे जो आपको पढ़ना है. ठीक है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन से बहुत कुछ इफेक्ट होता है. सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू ओवरकम दिस. सो कुछ भी करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड ऐसा होता क्यों है. वाई डू प्रोक्रेस्टिनेशन हैपन्स? वन बिग रीज़न इज वी फील दैट वी हैव इनफ टाइम. हमारे पास बहुत टाइम है. When your target is 1 year after, 2 year after, तो आपको दिख रहा है कि टाइम बहुत है, तो आप डिले करते हो. पर आपको अगर पता है कि अच्छा ठीक है ड्यू डेट 31 जुलाई का है, तो आप क्या डिले करोगे? नहीं करोगे. आपको पता है कि 30 सितंबर को ऑडिट सीजन का लास्ट डेट है, आप डिले करोगे? नहीं करोगे. अगर कल एग्जाम है तो आप आज पढ़ोगे ही पढ़ोगे. बट अगर आपको पता है कि एग्जाम 2 महीने बाद है, तब फिर आप बोलोगे अच्छा बहुत टाइम है, आज घूम लेते हैं. राइट. सो वन बिगेस्ट रीजन इज वी हैव इनफ टाइम. बेसिकली फर्स्ट रीजन इज पुअर टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आप प्रॉपरली टाइम मैनेज नहीं कर रहे हो, इसलिए आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो. ठीक है. सेकेंड रीजन इज लैक ऑफ क्लैरिटी. आपको खुद को समझ ही नहीं आ रहा आपको कहाँ से स्टार्ट करना, वेयर टू स्टार्ट, वेयर टू एंड, नहीं समझ आ रहा. वेन एवर देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी, तो आप उस टास्क को बार बार डिले करोगे. अच्छा कल कर लेंगे, कल सोचेंगे कैसे करना है, लेट्स सी. ओके. सो लैक ऑफ क्लैरिटी होते ही आप वापस से प्रोक्रेस्टिनेट करोगे. नेक्स्ट रीज़न इज डिस्ट्रैक्शंस. दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउअडेज. हमें पता है हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ही चाहिए. फ़ोन में एक मैसेज आ गया, नोटिफिकेशंस आ गया, गेम्स है इतने सारे, नेटफ्लिक्स, OTT, लॉज ऑफ थिंग्स विच कैन डिस्ट्रैक्ट अस. बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लगेगा आपको डिस्ट्रैक्ट होने में. राइट. सो दैट अगेन इज़ अ चैलेंज. वन मोर रीज़न इज़ कि दैट फियर कि अगर अच्छे से नहीं कर पाए तो इसलिए आप डिले कर देते हो. एम आई नॉट गुड इनफ, इसलिए लेट करते रहते हो. तो दैट फियर, दैट यू नो दैट फियर ऑफ नॉट एक्सेप्टेंस, कि आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके कारण भी आप टास्क को डिले करते हो ताकि कोई आपको जज ही ना करे. इफ नथिंग इज डन, दैट मीन्स नो रिस्क एट ऑल. So now let's move to the most important part of the video, which is the strategies to beat procrastination. क्या क्या स्ट्रैटेजीज, क्या क्या टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन को अपने लाइफ से वैनिश करने के लिए. सो द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज़ माई मोस्ट फेवरेट, ब्रेक डाउन योर टास्क. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कोर्स हो, सब्जेक्ट हो, एनीथिंग, एनी टास्क, डिवाइड इट, ब्रेक इट इनटू स्मॉल 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 टास्क. सेट स्मॉल टारगेट्स फॉर योर सेल्फ. जब भी आपका टारगेट छोटा दिखेगा, कम दिखेगा, तो आपको मन करेगा करने का. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बड़ा सारा टास्क को आप छोटे छोटे बिट्स एंड पार्ट्स में डिवाइड करो. द सेकेंड स्ट्रैटेजी इज 2 minute रूल. कोई भी टास्क अगर आपको करना है ना, आप बस बैठ जाओ, जस्ट सिट. वो 2 minutes आर इनफ टू सेट अ मोमेंटम. आपका मोमेंटम सेट हो जाएगा. जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, आपको अगर मन कर रहा है कि टीवी देखे या गेम खेले, जस्ट 2 minutes रुक जाओ. 2 minutes you wait and you know it's enough to build the momentum of studying again. So 2 minute rule apply करो जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होने के स्टेप में हो. द थर्ड टेक्निक इज सेट डेडलाइन. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक डेडलाइन सेट करो कि आप इस तारीख को इतने बजे तक ये चीज़ ख़त्म कर लोगे. हर चीज़ के लिए डेडलाइन होता है. राइट. इनकम टैक्स फाइलिंग के भी डेडलाइंस है, ऑडिट रिपोर्ट्स, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग के भी डेडलाइंस है, TDS के डेडलाइंस है. एवरीथिंग हैज़ टू हैव अ डेडलाइन सो दैट वो काम आप करो. राइट. तो स्टडीज़ के साथ भी इफ़ यू सेट अ डेडलाइन कि इस तारीख तक आपका ये चीज़ हो जाना चाहिए, तो आप 100% करोगे ही करोगे उसको, कैसे भी करके. सो सेट अ डेडलाइन फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक वेन एवर यू स्टडी. सो द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस. देखो, डिस्ट्रैक्शंस हर जगह है. इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच यू वॉन्ट टू बी फोकस्ड. तो जहाँ पे भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, ट्राई कि वहाँ पे टीवी ना हो, फ़ोन ना हो. बी इन अ जोन विच इज़ डिस्ट्रैक्शन फ्री so that you can concentrate properly. So the next strategy is reward yourself. Celebrate small wins. It's very important that if you are being able to complete your task, तो आप खुद को reward करो. You know, celebrate your small wins that you get when you complete a task.
जैसे व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, जब भी मैं 15 डेज का ड्यूरेशन सेट करती थी फॉर 2 सब्जेक्ट रिविजन के टाइम पे, एंड वेन एवर आई यूज टू कंप्लीट माई रिविजन बिफोर 15 डेज, लाइक 13th डे में या 14th डे में, तो वो 1 डे जो मैंने एक्स्ट्रा इस सब्जेक्ट के लिए रखा था, आई नेवर यूज टू स्टडी. आई यूज टू रिवॉर्ड माई सेल्फ, टू रिलैक्स, सेल्फ केयर, एंड to just to rejuvenate again, energize again, and then start for the next topic, for the next subject. So always reward yourself, it will actually boost you up. And then the last strategy is practice self compassion. It's very important that you don't exert yourself too much. खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है. सेल्फ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट. डोंट बीट योर सेल्फ अप कि करना है. सेट द टाइम लिमिट. गिव इनफ गैप्स इन बिटवीन कि आप रिजुविनेट हो रहे हो बीच बीच में. सेल्फ कंपैशन होना ज़रूरी है, बिकॉज वेन यूल एक्सेप्ट ना कि एवरी स्टेप फॉरवर्ड विच यू आर टेकिंग इज़ अ प्रोग्रेस, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट अच्छा ठीक है, 1% इम्प्रूवमेंट डेली इज़ अ प्रोग्रेस. Okay, I'll suggest you to read a book, Atomic Habits. It's a beautiful book. Do read that, because it will tell you that every day if you improve by 1% throughout the year, see how much progress you can do. So now that's all about procrastination, why it happens, what are the effects, the strategies which you can use to overcome procrastination. So now it's your turn. Which strategy you want to start with to overcome procrastination? Do share me which technique helped you. Whenever you sit to study and you are about to procrastinate, what technique you applied to overcome it? Do share it in the comment below. And yes, if you found this video helpful, do like and subscribe and share it with a friend who wants to overcome procrastination as well. So remember, life is what you bake it. So let's bake a productive life, a beautiful life, right? Thank you so much. I hope you loved this video. Thank you.